Good afternoon, students. My name is Dr. Karubi Shaha, Government Dungar College, Bikaner, Department of Geography. Today I will talk on principles of human geography. There are three basic principles of human geography. First principle है principles of terrestrial unity or interrelationship. पार्थिव एकता बा अंतर संबंध की सिद्धांत. सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और चेंज, परिवर्तन बा परिवर्तन कहा जा सकता है या इसको हम प्रगति तथा क्रियाशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं. और थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट और एडप्टेशन, समायोजन, वातावरण समायोजन का संबंध वातावरण समायोजन का सिद्धांत. तो फर्स्ट टुडे आई विल टॉक ऑन प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और इंटर रिलेशनशिप व अंतर संबंध की सिद्धांत पर. ऑल टेरेस्ट्रियल फिनोमेना like physical phenomena, biological and human phenomena are interrelated with each other. One element is dependent on other. Humboldt, Ritter, Ratzel, Vidal de la Blache, Brunhes, they are the contributors. They have considered the principle of terrestrial unity, the fundamental unifying idea of geography. In any place or in any ecosystem, there is a relationship between natural vegetation, animals and human being, which gives an ecological adjustment. There are ample examples of interrelationship between various phenomena, physical, biological and cultural phenomena. Agriculture, the primary activity of man. The first example, if I take the first example, as for example, agriculture, the primary activity of man, it is the primary activity of man, and it is deeply influenced by natural factors like climate, soil, as well as other socio-economic conditions. Economic and social factors along with physical factors determine the type of farming and mode of production. लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अगर हम कहीं पे कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, उसकी लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, लैंडफॉर्म, क्लाइमेटिक कंडीशंस, रॉ मटेरियल्स, पावर रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल, मार्केट, means of transportation, technology, management and policies of the state or community. So these are the physical as well as social and cultural factors which influence the location of the manufacturing industries. So these are interrelated. When we talk about distribution of population, another example is distribution of population. It is a demographic example and it is also influenced by the physical phenomena as well as human and cultural phenomena. Physical phenomena, which is topography, climatic condition, availability of water, these are the factors which influence the distribution of population. Or economy, migration patterns, social conditions, these are the human and cultural phenomena which also influence the distribution of the population. जैसे अगर हम रैटजेल की बात को माने, रैटजेल के अनुसार, रैटजेल एक जोग्राफर, उनके अनुसार मानव का संपूर्ण जीवन, उसकी बहुमुखी क्रियाएं, मानव समुदाय आदि सभी का अध्ययन
विवेकपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। इस अध्ययन में पृथ्वी के विभिन्न तथ्यों का पारस्परिक संबंधों पर जोर दिया जाता है, जिसमें भौगोलिक एकता को दर्शाया जाता है। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान के भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित हैं और वातावरण भौतिक दशाओं के एक योग है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल और ले लें, पर्वत एवं नदियाँ। पर्वत और नदियों के बीच में भी एक परस्पर संबंध है। कैसे? नदियाँ पर्वतों से जन्म लेती हैं, उन्हें काटती भी हैं तथा अपरोदित जब वो पहाड़ों व पर्वतों को काट के नीचे की तरफ आते हैं नदियाँ, तब वो कुछ चीज़ों को इरोड करते हैं व अपरोदित करते हैं, इरोजन होता है। उस अपरोदित व इरोडेड जो मटेरियल्स हैं उसको ले जाके नीचे जियोसिंक्लाइन में जमा कर देती हैं। अब वो धीरे धीरे जमाव होके, वो जो अपरोदित मटेरियल्स हैं वो जमाव होने के बाद क्या है, आंतरिक शक्तियों व एंडोजेनिक जो फोर्सेस हैं उसके प्रभाव से ऊपर उठ जाता है और पर्वत श्रेणी की जन्म लेते हैं। तो इस पर्वत श्रेणी धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठते हैं। तो ये एक अंतर संबंध है पर्वत और नदियों के बीच में। इसी तरह से वनस्पति और जलवायु का भी अगर हम अंतर संबंध देखें तो वनस्पति और जलवायु में भी पार्थिव एकता की संपूर्ण झलक मिलती है। प्रत्येक जलवायु प्रदेश की अपनी वनस्पति होते हैं। जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेशों में भारी वर्षा व ऊंचा तापमान उसको सघन वनस्पति के लिए उत्तरदायी हैं। इसी तरह से मानव तथा जलवायु में भी एक पारस्परिक संबंध है। अनुकूलन जलवायु व मॉडरेट क्लाइमेट, जिस जलवायु में व जिस मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस में पॉपुलेशन ग्रो करना पॉसिबल होता है, तो अनुकूलन जलवायु व मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले क्षेत्रों में जनसंख्या सघन रूप से दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा एकत्रित होते हैं पॉपुलेशन, एक जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन दिखाई देते हैं। यहाँ मानव बस्तियाँ मधुमक्खी की छाती की भांति दिखाई पड़ता है। विषम जलवायु व जहाँ पे जलवायुगत व क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़ा अपोजिट हैं, वहाँ पे वाले क्षेत्रों में जनसंख्या बिखरी व कम घनत्व, तो लो डेंसिटी वाले पॉपुलेशन, और जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है वहाँ पे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन मिलती हैं। उपर्युक्त जो हमने विवेचना से हम स्पष्ट करते हैं कि मानव, पशु, पेड़ पौधे तथा प्राकृतिक तत्व पूर्णतया परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। इनमें से किसी को पृथक नहीं किया जा सकता। एक को पृथक करो तो दूसरा जीवित नहीं रहता, तो एक दूसरे पे हमेशा निर्भर करते हैं। तो वातावरण का अध्ययन करते समय इन सभी का मिलीजुली अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। जिन ब्रुनहेस ने इस सिद्धांत को अंतर संबंधीय सिद्धांत व प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप व इंटर कनेक्शन का नाम दिया है। उनका कहना है, भौगोलिक घटनाओं एक दूसरे से संबंध है और उनका अध्ययन विभिन्न समूहों में पार्थिव एकता के सिद्धांत के अंतर्गत होना चाहिए। वाइडल डी ला ब्लैश इन्होंने कहा है, पृथ्वी की मूलभूत एकता को स्वीकार करते हुए कहा है कि समस्त भौगोलिक विकास में प्रमुख भावना पार्थिव एकता ही है। अतः सभी प्रकार के भौगोलिक अध्ययन संपूर्ण तथ्यों के विचार बिना अधूरे हैं। कोई भी एक तथ्य दूसरे तथ्य से कभी अलग ही नहीं हो सकते हैं। जैसे हमने एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल दिए थे, कृषि, जो हम कृषि करते हैं, कृषि के लिए सिर्फ ह्यूमन पावर का ही
ह्यूमन लेबर का ही ज़रूरत से नहीं होता, उसमें हमें सॉइल भी चाहिए, वाटर रिसोर्सेज भी चाहिए, गुड टोपोग्राफी चाहिए, जो लैंडफॉर्म है वो रफ लैंडफॉर्म हो तो हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, कृषि नहीं कर सकते हैं, करें तो उसके लिए दूसरी उपाय हमें ढूंढना पड़ता है। तो एक जो फिज़िकल कुछ फेनोमेना है व प्राकृतिक जो वातावरण है व प्राकृतिक जो फैक्टर्स हैं उसके साथ सोशल फैक्टर्स व ह्यूमन लेबर हो या मैनेजमेंट हो या कैपिटल हो, ये भी व ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात की, क्योंकि हम अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कुछ फसल उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करने के बाद हमें उसको मार्केट तक व कंज्यूमर्स तक पहुंचाना पड़ेगा। तो पहुंचाने के लिए हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, एक मार्केट भी चाहिए। तो इन सभी सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स के साथ फिजिकल फैक्टर्स की एक अंतर संबंध है, तभी एक वो काम इकोनॉमिक वर्क हो या सोशल वर्क हो या कल्चरल वर्क हो, तभी वो प्रतिपादित हो पाते हैं। तो इस प्रकार पार्थिव घटनाओं का मूल्यांकन एक इकाई के रूप में किया जाता है, जो आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। थैंक यू।